Hello, my dear students. Good morning and welcome to RPDM Academy. Today, I'm here with you with the concepts of, as you can see on the board, Chapter 2, Nationalism in India. This is very important concept. This is very important chapter of history from the view of examination of CBSE boards. Fine. So here you can see some of the key points I have already mentioned here, like the First World War. The chapter begins with the First World War. The First World War was broke out in 1914 and continues till 1918. So the question arises here, this First World War took place or was occurred between two of the powerful forces. First was of alliance forces and second one was of axis forces. So let me tell you a trick, that is to remember axis forces. TAG, TAG, Turkey, Austria and Germany, and remaining countries were there to cooperate with them. ठीक है, whereas allies forces और allies forces, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं मित्र राष्ट्र, वो थे बेटा RBF, Russia, Britain and France. So you are well aware that at that period, it means that Britain was having a war with whom? With all these Axis powers, Turkey, Austria and Germany. Fine. So, and at that period, India was the colony of British. In 1914, we were under the British rule. So, what they did with India, they have called villagers. They have called villagers on border. उन्होंने villagers को soldiers की supply करने के लिए कहाँ बुलाया? बॉर्डर पे बुलाया. इससे क्या हुआ? इससे हमें क्या नुकसान हुआ? जो विलेजेस थे, जो टाउन्स थे, जो इंडिया के लोग थे, उन्होंने क्या सफरिंग की? उन्होंने सफरिंग की बिकॉज जो इंडिया था इट वॉज एन एग्रीकल्चरल कंट्री. फाइन. सो एग्रीकल्चरल कंट्री होने की वजह से यहाँ क्या हुआ? शॉर्टेज ऑफ लेबर. So it means that what was the scenario, what was the political and social condition in India? So first of all, what? Shortage of labor. So just because of the First World War, we have faced what social problem? Shortage of labor. We have faced here shortage of labor because villagers were called upon to fulfill the requirement of soldiers. Fine. And what happened? अब शॉर्टेज ऑफ लेबर होने की वजह से एबल बॉडीड कहाँ चलेगी? वॉरफेयर के लिए बॉर्डर्स पे चलेगी. बॉर्डर्स पर जाने के बाद जो पीछे जो कंडीशन रही, इससे क्या हुआ? क्रॉप डिक्लाइन हो गई. जो क्रॉप प्रोडक्शन था वो क्या हो गया? डिक्लाइन हो गया. फाइन. सो देयर वाज शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन, शॉर्टेज और स्कार्सिटी ऑफ फूड ग्रेन. एंड इसके साथ साथ अब फूड ग्रेन की शॉर्टेज हो गई, मतलब कि खाने पीने की मंदी आ गई. इससे क्या होगा? अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि खाने पीने की मंदी आने से जब भी कोई फ्लड होती है या कोई भी ऐसा डिजास्टर आता है, इससे क्या होता है? इससे जो चीजों के प्राइस है वो बढ़ जाते हैं. सो व्हाट इट लेड? फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज होने से प्राइसेस रोज्ड हाई. इससे प्राइसेस क्या हो गए? डबल हो गए. ठीक है. सो थर्ड प्रॉब्लम इंडियन फेस, प्राइसेस रोज हाई. एंड इंडियन ने इसके बावजूद सोचा कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाएंगी. कब? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ओवर होने के बाद. बट ऐसा नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि जो वॉर लड़ा जा रहा था बेटा, वो लोन लेकर लड़ा जा रहा था बिटवीन एक्सिस एंड एलीज पावर्स. फाइन. इससे हमें नुकसान क्या हुआ? इससे हमें नुकसान ये हुआ कि आफ्टर द वॉर इवन the British did not give us freedom as they have promised us before 1919. ठीक है, before 1918 जो उन्होंने हमें प्रॉमिस की थी कि they will provide Indian freedom. They did not fulfill that. Even though in return, what did they do? They have increased the taxes in order to fulfill the debt of loans which they taken because of the war. फाइन. तो फोर्थ जो प्रॉब्लम हमने फेस की वो क्या की? इंक्रीज ऑफ टैक्सेस.
Understood? So easily you can define this increase of taxes and for what purpose it was increased. Fine. And इसके साथ साथ अब ये सारी प्रॉब्लम से इंडिया सफर कर रहा था. इन प्रॉब्लम्स के साथ इंडियन की प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई, इंडियन की सफरिंग्स कम नहीं हुई. इवन इसमें और चार चांद लगा दिए, इसको और इंक्रीज कर दिया. किसने? एपिडेमिक्स फैल गई. एपिडेमिक व्हाट डू यू मीन बाय एपिडेमिक? एपिडेमिक मीन्स बेटा अ काइंड ऑफ डिजीज विच अफेक्ट a large area and a large number of people. So an influenza epidemic was spread. The fifth problem which Indian faced, spread of influenza epidemic. इससे क्या हुआ? Famine, death, and which was accompanied by famine, large scale starvation, hunger, भूखमरी आ गई और बहुत सारी डेथ हुई. Around 3 to 4 million people we Indian lost here. Fine. So these were the conditions of social and political condition which India faced during First World War. यहाँ से एग्जामिनर बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है, एक्सप्लेन द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस of India during First World War. Hope easily you can define all these 5 points. These are main points which I wrote on my board. And whenever you got question of 3 marks and question of 5 marks, so see what you have to do. You have to give a little introduction belonging to that concept, and after that you will come on the main points. These are all are the main points and you can easily define them within 1 or 2 lines. Fine. Rest at the end you will write down conclusion that you can do easily after doing all these things. Fine. So this was the beginning of the chapter nationalism in India. अब क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है इतना सब कुछ हो गया, 1918 में वॉर भी ओवर हो गया, उसके बाद इंडिया जो इन सारी सफरिंग से परेशान था, इसी ड्यूरेशन इसी कंटेम्प्रेरी पीरियड में और क्या चीजें चल रही थी इंडिया के अंदर, इंडिया के टाउन्स में, सिटीज में, विलेजेस में. इट वॉज द पीरियड when you can see Gandhiji returned to India. In my math class also I told you in 1915 Gandhiji returned from South Africa to India and he led his first satyagrah. He led his first satyagrah in South Africa against apartheid system. What was apartheid system? A question arises here. Apartheid was a practice on basis skin color discrimination. On the basis of skin color discrimination was being done with the people. Fine. So गांधी जी ने अपना फर्स्ट सत्याग्रह जो राइज किया वो कहाँ किया? साउथ अफ्रीका में किया. किसके अगेंस्ट? रंग भेद नीति के अगेंस्ट. अपार्थाइड इज नॉन एज रंग भेद नीति. फाइन. So that is not the part of our concept. I am just giving you the preview related to गांधी जी सत्याग्रह. Fine. If we talk about कि गांधी जी का जो फर्स्ट सत्याग्रह भारत में हुआ वो कहाँ हुआ बेटा जी? 1915 में वो भारत आए. 1916 उन्होंने 1 ईयर लिया पूरे इंडिया को टूर करने का एंड सिचुएशंस को ऑब्जर्व एवेलुएट करने की, समझने का ट्राई किया. एंड इन 1917 जब गांधी जी कहाँ गए? चंपा के घर गए. एज ऑलरेडी आई टोल्ड यू चंपा का घर कहाँ था? यस, बिहार में. जब वो चंपारण में गए, बिहार में गए, देन there he observed the exploitative system of what? Indigo cultivation. चंपारण में क्या चल रहा था उस टाइम पर? इंडिगो कल्टीवेशन. इंडिगो का मतलब आप समझते हैं, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? नील कहते हैं. नील वाज अ इंडिगो वाज अ काइंड ऑफ डाई, एक तरह का डाई कलर था जिसे ब्रिटिश एक रॉयल कलर मानते थे, रॉयल रिच ब्लू कलर. आप लोगों ने पहले लाइक व्हाइट कलर्स को लाइक एक तरह से डाई करने के लिए हमारी मम्मियां यूज करती थी. उजाला एक आता था बड़ा फेमस, है ना, नील. तो इंडिगो रेफर्स व्हाट? वो नील. फाइन. जहां पर जो प्लांटर्स थे, जो ऑनर्स थे, वो कौन थे? वो ब्रिटिश थे. और या तो वो अपनी खुद की लैंड पे कराते कि लैंड को वो रेंट पे ले लेते, या फिर वो इंडियन फार्मर्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते, उन्हें एडवांस दे देते अपने ट्रैप में फंसाने के लिए, अपने चुंगल में फंसाने के लिए उन्हें एडवांस दे देते. और उस एडवांस के बदले इंडियन फार्मर्स को क्या ग्रो करना था? इंडिगो ग्रो करना था. फाइन. अपनी फर्टाइल पार्ट ऑफ लैंड पर क्या करना था? इंडिगो ग्रो करना था. फाइन. एंड बेटा जी
अब जब वो इंडिगो ग्रो करते थे तो इससे क्या होगा, इससे जो फूड ग्रेन थी उसकी तो शॉर्टेज होगी ही होगी ऑब्वियस। उनका जो फर्टाइल पार्ट था वो किसके लिए ऑक्यूपाइड था, इंडिगो कल्टीवेशन के लिए। तो गांधी जी ऑब्जर्व द सिनेरियो देयर इन चंपारण इन बिहार एंड ही सपोर्टेड इंडिगो कल्टीवेटर्स, नॉट प्लांटर्स, बी रिमेंबर कल्टीवेटर्स, यानी फार्मर्स को उन्होंने क्या किया, सपोर्ट किया वहां पर। अगेंस्ट किसके अगेंस्ट, एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन अगेंस्ट प्लांटर्स, अंडरस्टूड। तो सत्याग्रह, अ क्वेश्चन अराइज हियर व्हाट, सत्याग्रह, ये सारे गांधी जी के क्या है बेटा जी, सत्याग्रह। सत्याग्रह अपने नाम से ही क्लियर है, व्हाट इज इट, कॉल फॉर द ट्रुथ। सत्याग्रह रेफर्स व्हाट, कॉल फॉर द ट्रुथ विदाउट यूजिंग नॉन वायलेंस। इट वाज an intensive measure by using skill, knowledge, ठीक है। सो व्हाट इज सत्याग्रह, कॉल फॉर द ट्रूथ, सत्य के लिए आग्रह करना, सत्य के लिए खड़े होना, लड़ना सत्य के लिए, बट बाय यूजिंग नॉन वायलेंस। गांधी जी के टू सबसे ग्रेट वेपन्स थे, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ठीक है। बाय यूजिंग दीज टू वेपन्स गांधी जी मेड आवर कंट्री फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल and the time period from 1919 to 1947 that is known as Gandhian age or Gandhian era, fine। so सबसे पहला जो सत्याग्रह गांधी जी ने लॉन्च किया वो कहाँ किया, 1917 में चंपारण में किया, ठीक है। अगेंस्ट किसके अगेंस्ट किया, इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट किया, फाइन। एंड इन 1918 गांधी जी चंपा के घर को विजिट करने के लिए आए। आज गांधी जी को बड़े पॉपुलर हैं, साबरमती की संत तूने कर दिया कमाल। तो ये कहाँ थे, गुजरात में। अब गुजरात जब पहुंचे तो गांधी जी ने देखा 1918 में खेड़ा में जो पीजेंट्स थे, क्रॉप फेल हो गई थी। क्रॉप फेल होने की वजह से व्हाट हैपेंड कि दे वर डिमांडिंग टू रिडक्शन एंड एग्जेम्पशन इन रेवेन्यूज, द रेवेन्यू विच दे provide to the state or to the British government or to the to the owners of landlords or the money lenders. So the peasants and the farmers were demanding for the reduction in the revenue because of the failure of the crop in 1918 in Kheda district of Gujarat, fine। and in 1919 में ही गांधी जी ने देखा कि खेड़ा का भी सॉल्यूशन हो गया, और खेड़ा के सॉल्यूशन के बाद अहमदाबाद में फिर से इस तरह का एक्सप्लॉयटेशन चल रहा था। तो सो ही लेड हिज नेक्स्ट सत्याग्रह वेयर इन अहमदाबाद अगेंस्ट हु, अगेंस्ट मिल ऑनर्स। ही गांधी जी सपोर्टेड, गांधी जी ने किसको सपोर्ट किया, मिल वर्कर्स को सपोर्ट किया। व्हाट फॉर, बिकॉज जो कंडीशंस थी वर्कर्स की, मिल जहां पर प्रोडक्शन किया जाता है बेटा, प्लेस वेयर प्रोडक्शन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज टुक प्लेस, ठीक है। तो मिल जो थी, मिल जो ऑनर्स जो थे वो पुअर कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे थे वर्कर्स को, वर्कर्स के वेजेस लो थे। तो गांधी जी ने अहमदाबाद में मिल वर्कर्स को सपोर्ट किया अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट द पुअर कंडीशंस, ठीक है, एंड द पुअर वेजेस, अगेंस्ट मिल ऑनर्स, फाइन। सो दीज ऑल वर द थ्री फर्स्ट सत्याग्रहs which Gandhi ji started in India as he reached from South Africa to India. So now come to 1919, an year when First World War was over already। जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, भारतीयों को लगता था कि अब उनकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इवन उनकी सफरिंग्स, उनकी जो माइजरी कंडीशंस थी वो और भी ज्यादा क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और कैसे इंक्रीज हुई, 1919 गांधी जी ये सारी चीजें देख ही रहे थे, ठीक है। और इन सब चीजों के देखते देखते गांधी जी सब कुछ, ये सब सत्याग्रह उन्होंने लॉन्च कर ही दिए थे, ठीक है। उसके जस्ट आफ्टर गांधी जी को लगा कि ये छोटे छोटे सत्याग्रह करने से काम नहीं चलेगा। ही required to start a broad movement against British rule which could uproot them, fine। So for the same purpose he observed that there are two communities which are in majority, Hindus and Muslims, and for the same what he did, he was looking for an opportunity, वो एक मौका ढूंढ रहे थे कि उन्हें हिंदू और मुस्लिम्स को एक साथ लाने का कोई मौका मिले, फाइन। और इसके लिए उन्होंने क्या किया बेटा, इसके लिए उन्हें एक अवसर मिला, एक ओकेजन मिला ऑफ खिलाफत इशू।
ये खिलाफत, ठीक है, जो मार्च 1919 में उन्हें क्या मिला, खिलाफत इशू मिला। गांधी जी को एक मौका मिला, अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग हिंदू एंड मुस्लिम यूनाइट अंडर अ सिंगल अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन, यू कैन से फाइन। सो व्हाट डिड गांधी जी डू हियर, गांधी जी ने यहाँ पर क्या किया, गांधी जी जो खिलाफत, समझ लो पहले खिलाफत क्या था। खिलाफत, खलीफा एक वर्ड है जिससे खिलाफत वर्ड डिराइव किया गया है, खलीफा। व्हाट डू यू मीन बाय खलीफा, खलीफा इज नॉन एज द स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, ठीक है, इस्लामिक वर्ल्ड के स्पिरिचुअल आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं खलीफा, फाइन। तो अब मैंने पहले ही बताया था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बेटा अकर हुआ था, ब्रोकआउट हुआ था, वही दो ग्रुप्स के बीच में था, एक्सिस एंड एलीज ग्रुप के बीच में। तो जो खलीफा थे वो ऑटोमन एम्पायर के हेड थे, ठीक है, और ऑटोमन एम्पायर कहाँ था, टर्की में था, फाइन। ये टी सेज यहाँ पर टर्की, ऑटोमन एम्पायर कहाँ था, टर्की में था, टर्की, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फाइन। ये थी एक्सिस पावर, सेंट्रल पावर जिसे आप कह सकते हैं। तो सेंट्रल हैशटैग टैग से याद कर लो, सेंट्रल पावर टैग, टर्की, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ठीक है। तो जो ये खलीफा थे, स्पिरिचुअल हेड थे किसके, इस्लामिक वर्ल्ड के हेड थे, जिनका ऑटोमन एम्पायर का रूल कहाँ था, टर्की में था, अंडरस्टूड। तो अब ऐसे रूमर स्प्रेड हो गई थी कि अब जब ब्रिटिश ने हरा दिया था किसको, सेंट्रल पावर्स को, ठीक है, तो अब ये रूमर स्प्रेड हो गई थी कि खलीफा की जो टेम्पोररी पावर्स हैं, जो टेम्पोरल पावर्स हैं, उनको क्या कर दिया जाएगा, जो स्पिरिचुअल पावर्स हैं उनको छीन लिया जाएगा। और ये एक तरह से क्या थी, एक तरह से इंसल्टेड ट्रीटी खलीफा पे इम्पोज की जाएगी, ठीक है। और इस चीज का बदला लेने के लिए, इस चीज का रिवेंज लेने के लिए, ठीक है, टू मुस्लिम ब्रदर्स हु बिलोंग फ्रॉम इंडिया, शौकत अली एंड मोहम्मद अली, दे जॉइंड हैंड विद गांधी जी, फाइन। तो ये था। अगर एग्जामिनर आपको, मैंने इसीलिए डेट मेंशन की है क्योंकि एग्जामिनर आपको यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है टू अरेंज द इवेंट्स इन द सेम ऑर्डर इन विच दे टुक प्लेस, ठीक है, जिस ऑर्डर में वो घटनाएं घटित हुई है उसी में उसको अरेंज करना। तो बेटा सबसे पहले मार्च 1919 में खिलाफत इशू, बॉम्बे में एक कमेटी बनाई गई, खिलाफत कमेटी बॉम्बे में बनाई गई, बी रिमेंबर, महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये खिलाफत इशू सबसे पहले लॉन्च हुआ। उसके जस्ट आफ्टर अंग्रेजों ने क्या कर दिया, ब्रिटिश तो पहले ये चाहते थे कि इंडियन को और ज्यादा क्रश किया जाए, ये जो सत्याग्रह चल रहा है इसको खत्म किया जाए, फाइन। तो उन्होंने 6 अप्रैल को क्या लॉन्च कर दिया, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट दैट इज क्लियर विद इट्स नेम। ये एक ब्लैक एक्ट था, एक काला कानून था। एज पर दिस एक्ट ब्रिटिश गॉट इनॉर्मस पावर इन देयर हैंड्स इन ऑर्डर टू सप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स एंड दे कैन व्हाट डिटेंट, दे कैन, वो किसी भी पॉलिटिकल लीडर को उठा सकते थे ऑन द बेसिस ऑफ सस्पेक्ट एंड पुट दैट पर्सन बिहाइंड द बार्स विदाउट एनी ट्रायल फॉर 2 years, और उस पर्सन को 2 साल के लिए जेल में बंद किया जा सकता था बिना किसी कोर्ट प्रोसीडिंग्स के। तो दैट्स व्हाई इट वाज अ ब्लैक एक्ट, फाइन, इट वाज नॉन एज ब्लैक एक्ट इन इंडियन हिस्ट्री। एंड बेटा इसके लिए फिर चारों ओर बड़े रायट्स हो रहे थे, बड़े लोग अपोज कर रहे थे इसको, ठीक है। इवन गांधी जी हिमसेल्फ अपोज दिस ब्लैक एक्ट एंड एक फिर से गांधी जी ने क्या स्टार्ट कर दिया, सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया इन ऑर्डर टू अपोज क्या, रॉलेट एक्ट, जो कब लॉन्च किया गया 6 अप्रैल को। और यहां से एग्जामिनर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, हु पास्ड रॉलेट एक्ट, तो आप क्या बताएंगे, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। इंडियन मेंबर्स भी थे वहां पर, इंडियन मेंबर्स ने बहुत अपोज किया, लेकिन जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जो ब्रिटिश ग्रुप था, उसने इसको क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया और इसको लागू कर दिया, फाइन। उसके जस्ट आफ्टर ये सब चीजें चल रही थी, सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया था गांधी जी ने, तो ब्रिटिश ने सोचा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ऐसे तो कम्युनिकेशन, रेलवे, सारी चीजें ब्रेक डाउन कर दी थी इंडियंस ने, ठीक है। तो ब्रिटिश ने इस सत्याग्रह मूवमेंट को क्लैम्प डाउन करने के लिए, क्रश करने के लिए, सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए 10 अप्रैल को अमृतसर में क्या किया, 2 फेमस लीडर्स थे, सत्यपाल रे, अमृतसर में यहाँ पर उन्होंने क्या किया, सत्यपाल रे एंड सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट कर लिया। सत्यपाल रे, दिस आई एम टेलिंग यू, नेम्स आर नॉट गिवन इन योर बुक, सत्यपाल रे एंड सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों लीडर्स को पंजाब के अमृतसर से क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया, ठीक है। और अरेस्ट करने के बाद और भी ज्यादा वहां पर क्या हो गया, कॉमन पीपल में एंगर हो गया अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, एंड व्हाट दे डिड,
they have started demonstrations in peaceful way, and such kind of demonstration was going on in Amritsar in Jallianwala Bagh in Punjab. Fine. On kab on 13 April 1919, 13 April 1919, ठीक है। उस दिन जलियांवाला बाग में बैसाखी फेयर भी था, ठीक है, क्योंकि हर साल हम 13 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट करते हैं, बैसाखी सेलिब्रेट करते हैं। तो बेटा उस दिन जलियांवाला बाग मैसेकर भी हुआ। क्यों? क्योंकि इस सिचुएशन को देखते हुए कि चारों ओर सत्याग्रह चल रहा है अगेंस्ट रोलेट एक्ट, इस सिचुएशन को दबाने के लिए ब्रिटिश काउंसिल ने क्या पास कर दिया, मार्शल लॉ पास कर दिया, यानी कि मिलिट्री का रूल लागू कर दिया, कर्फ्यू लागू कर दिया कि नो वुड बी अलाउड टू गैदर। फाइन। बट पीपल वर अनअवेयर अबाउट दिस मार्शल लॉ, लोगों को पता ही नहीं था कि मार्शल लॉ लागू हो गया है, और लोग बेचारे इनोसेंट पीपल, कुछ लोग जो 13 अप्रैल को बैसाखी का फेयर एंजॉय करने के लिए गए थे, और कुछ लोग क्या करने के लिए गए थे, पीसफुल प्रोटेस्ट्स कर रहे थे, डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे थे in order to in the reference to arresting of Satyapal Ray and Dr. Saifuddin Kichlu, जो पंजाब के बड़े फेमस लीडर्स थे जिनको अमृतसर में अरेस्ट कर लिया गया था, और गांधी जी को दिल्ली में एंट्री बैन कर दी थी उस टाइम, ठीक है। तो ये सारा सिनेरियो चल रहा था, तभी मार्शल लॉ इम्पोज होने के आवर्ज में जनरल डायर गॉट द कमांड टू शूट अपॉन द इनोसेंट people. Many were died there, many were killed, many were injured, even there was only single entry and exit gate that was also completely blocked, ठीक है, and the firing was going on till the bullets were finished, ठीक है। तो this act was criticized all over the world, not all over India, even all over the world। और फिर गांधी जी ने अपसेट होकर इस सिचुएशन से, इस खून खराबे से अपसेट होकर ही कॉल्ड रॉलेट सत्याग्रह, ही कॉल्ड ऑफ रॉलेट सत्याग्रह, और 1919 में फिर गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह को क्या कर लिया बेटा, कॉल ऑफ कर लिया, ठीक है, बिकॉज ही वॉज अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ वायलेंस। फाइन। ही वॉज डिवोटी ऑफ नॉन वायलेंस, दिस आई एम ऑलरेडी टेलिंग यू। एंड फिर दिस डे इज नॉन एज जलियांवाला बाग मैसेकर इन इंडियन हिस्ट्री। And what happened in 1920? Gandhi ji started what? Non-cooperation movement along with the Khilafat movement. इसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। Today till here. Thank you so much. अगर आपकी कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज हैं, so you can comment in the comment box. Thank you.